Good morning, everyone. So today we will discuss the another category of digital to analog converter, that is R to R ladder type of DAC. In last class, we have discussed 6-bit binary weighted resistor type of DAC. In that, we have seen that R is increasing in the multiplication of 2. As we have seen that in binary weighted resistor type of DAC, as the number of bits increase, the range of resistors which is required for the DACs will also increase. Okay, as we have seen that like for 3-bit DAC, we require 3 resistors, that is R, 2R and 4R. For 3-bit of DAC. But suppose for 6-bit of DAC, we need resistors like R, 2R, 4R, 8R, 16R, and 32R, and so on. So, this number of resistors which are required for the DAC will also increase as the number of bits increase. It is for 6-bit. See, we need 6 resistors for 6-bit weighted binary weighted resistor type of DAC, and for 3-bit we need 3 resistors. And this number will go on increasing in the multiplication of 2 with the number of bits. So, and it is very difficult to produce all these different values of resistors with good accuracy. And if these resistors are not accurate, then it can produce an error in the output. So, this problem can be solved to quite an extent if we use this R2R ladder type of a DAC. Because in that, we only use 2 types of resistors, that is R, either R or 2R. So, this is the drawback of binary weighted resistor type of DAC, and we have also seen that how we can convert and this digital input into analog in this type of DAC. Now, similarly, we will see R2R ladder type of a network. So, in this, suppose this is your op-amp V0 minus plus, non-inverting terminal is grounded and feedback is connected at the inverting terminal. Then we have resistors like this, 2R, and it is for 3 bits. If we have 3 bit of 3 bits, and if we want to convert 3 bit into an analog output. So this resistor is grounded, then we have 2R, and this is your B0. This is your LSB. Then we have resistor R and 2R, this resistor, and then we have R and 2R. And this is your B2, and this is your B1, and this is your B0. This is your MSB, the most significant bit. And आपके जो रेजिस्टर्स हैं सेम जैसे हमने बाइनरी बेटर रेजिस्टर में देखा था कि आपके रेजिस्टर्स या तो कनेक्टेड होंगे विद द वी रेफरेंस वोल्टेज और दे आर ग्राउंडेड. दो ही केसेस थे, उसमें भी आपके दो ही केसेस होते थे कि अगर आपका 1 है बिट, इफ बिट इज 1 देन इट इज कनेक्टेड टू द वी रेफरेंस. ये चीज हमने देखी थी इन बाइनरी बेटर रजिस्टर टाइप ऑफ डीएसी कि अगर आपकी बिट 1 है देन इट इज कनेक्टेड टू द रेफरेंस वोल्टेज, बट अगर आपकी बिट 0 है देन इट इज ग्राउंडेड. सेम इज दिस कि अगर आपकी बिट 1 है देन इट इज कनेक्टेड विद द रेफरेंस वोल्टेज, otherwise it is grounded. So this is the circuit of R2R ladder type of a network, and in this next, and this type of DAC, if you will see, this type of DAC uses the resistor ladder network, and this network only contains 2 types of resistors, that is R or 2R. So
As it uses only two values of resistors, it is easy and accurate. Means easy and accurate fabrication is possible, because here we are using only two resistors. And if you compare it with binary weighted resistor type of DAC, in that we use different types of resistors, and we choose resistors in multiplication of two. So, and it can be easily scalable to any desired number of bits. And its output impedance, we will also calculate the output impedance of this. And if you will see, the output impedance in this case is R, regardless of the number of the bits. And we will calculate this output impedance using the Thevenin resistance. So now we will see that how the output impedance of this R2R ladder network is R. The output impedance of this R2R ladder network is R. We will see this thing. अगर आप इस नेटवर्क को ऑब्जर्व करोगे तो इसमें ये जो फर्स्ट पेयर है 2R एंड 2R, ये सीरीज में है या पैरेलल में? जस्ट टेल मी। पैरेलल। फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपका किस में है? पैरेलल में। और हमने क्या इस नेटवर्क में चीज देखनी है कि जो आउटपुट इंपीडेंस है इस लैडर नेटवर्क की, दैट इज आर, वो चीज हमने देखनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज ये इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। एंड टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वी अज्यूम दैट ऑल द सोर्सेज आर जीरो। दैट इज हम इसमें ये अज्यूम करते हैं कि जो आपके सारे रेजिस्टर्स हैं दे आर कनेक्टेड टू द ग्राउंड टर्मिनल। इस केस में हम ये नहीं कंज्यूम कर रहे कि ये कोई वी रेफरेंस से कनेक्टेड है। आई हैव टोल्ड यू कि इन R2R लैडर नेटवर्क सेम जैसे बाइनरी वेटेड में था, आपके रेजिस्टर्स या ग्राउंड से कनेक्टेड होंगे या फिर रेफरेंस वोल्टेज से। बट जब हमने इनपुट इंपीडेंस कैलकुलेट करनी है, इस केस के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू द ग्राउंड टर्मिनल। मींस ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। तो उसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड से। तो जो आपका ये कॉम्बिनेशन है 2R एंड 2R, दे आर इन पैरेलल, बिकॉज ये भी ग्राउंड है, ये भी हम ग्राउंड अज्यूम कर रहे हैं। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो 2R एंड 2R का रिजल्टेंट क्या आएगा? 2R इन पैरेलल विद 2R, तो ये आपका R आ जाएगा। इफ यू विल कैलकुलेट एज दीज टू रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा? R, राइट। तो इसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस कितनी आई? R आ जाएगी। इन दोनों का इक्विवेलेंट 2R एंड 2R की R आ जाएगी। देन वो R रेजिस्टेंस इसके साथ किसमें हो गए? सेकेंड रेजिस्टेंस के साथ, सीरीज और पैरेलल? सीरीज में। इन दोनों का, यस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? सीरीज। R। तो यस, तो यहाँ R आ गया 2R एंड 2R का। देन नेक्स्ट ये R तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, एंड हेयर वी हैव 2R। आप इसे आगे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। मैंने इसकी जगह R लिखा इन दोनों की, और यहाँ R ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो ये R एंड R दे आर इन सीरीज, तो इन दोनों का सम क्या आ गया? 2R। अब इन दोनों का 2R आ रहा है, मीन्स यहां तक हमने देखा तो आपका 2R आ गया। एंड देन दिस 2R एंड 2R ये किस में हो गए? फिर से पैरेलल में आ जाएंगे। पैरेलल। ये पैरेलल में आ गए, तो इनका 2R एंड 2R का रिजल्टेंट फिर से क्या आ गया? R आ गया। इन दोनों का यहाँ जो 2R था, ये सीरीज 2R एंड दिस 2R फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये भी आपका R आ जाएगा। तो अब आपका यहाँ R है, यहाँ तक पहुंच गए हम। इन दोनों का रिजल्ट, यहाँ तक रिजल्टेंट R आ गया। फिर यहाँ R है, तो ये किस में है? R एंड R दे अगेन दे आर इन सीरीज। दिस R एंड दिस R दे आर इन सीरीज एंड इन पैरेलल विद दिस 2R। एंड यहाँ फिर थर्ड 2R है, तो ये R कितना हो गया? 2R। एंड देन 2R एंड 2R दे आर इन पैरेलल, तो इनका रिजल्टेंट कितना आ गया? R। मींस जब हमने इस एंड तक रेजिस्टेंस कैलकुलेट की तो आपको कितनी मिल रही है? R। इट मींस जो
आउटपुट रेजिस्टेंस है वो आपको कितनी मिल रही है, आर, एंड इट इज रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ बिट्स, चाहे आपके 3 बिट्स हो चाहे आपके 6 बिट हो, ये आपको आर ही मिलेगी जो आपको आउटपुट यहाँ इस ये जो आपका डीएसी है इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस इस एंड पे ही कैलकुलेट करेंगे बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लैडर नेटवर्क। तो डीएसी तो आपका इतना ही है, बट हमने क्या किया, इस डीएसी का जो आउटपुट है वो हमने ओपैम को दे दिया कि अगर आपको कुछ एम्पलीफिकेशन रिक्वायर्ड है देन इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस ओपैम। बट यहाँ से आपको लैडर नेटवर्क का आउटपुट मिल रहा है, तो इस एंड पे जो रेजिस्टेंस है, आउटपुट इंपीडेंस जो हमने मेजर की वो कितनी आ रही है, आर। तो अगर आप नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज भी करोगे इवन देन आपको जो आउटपुट इंपीडेंस मिलेगी इस केस में वो आपकी आर ही होगी। In this case